Today we are going to deal with the new chapter of history portion, socialism in Europe and the Russian Revolution. So first of all, which is very important, you should know the meaning of socialism. What does it mean? It means students means to move together, means society जहाँ पर all the resources, industries, economy, all the resources should be divided equally, right? Equal distribution. And here we can see this is the time कि यहाँ पे कुछ capitalism idealism भी start हो गई थी. It tells ये क्या बताती है कि if you have potential you can go forward. Capitalism focus on पोटेंशियल. इफ़ यू हैव गुड इकोनॉमी, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ है तो आप करते जाइए, अपना काम करते जाइए, प्रॉफिट कमाते जाइए और आगे को बढ़ते जाइए, राइट? दिस वाज द कैपिटलिज्म. नाउ थोड़ा सा बैक होते हैं हम लोग, बैकग्राउंड पे चले जाते हैं स्टोरी के, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, right? Because here it has mentioned Europe. Why only Europe? Why Europe? Okay, so the French Revolution opened up the possibility of creating dramatic change in the way in which society was structured. So what we studied in the previous chapter, we studied how much the French Revolution, the idea of freedom and equalities spread in whole Europe. ठीक है, पूरे यूरोप में किस तरीके से ये स्प्रेड हुआ इक्वालिटीज़ का आइडिया, फ्रीडम का आइडिया. एंड वी गॉट टू नो कि पहले फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन 3 states, right? But after revolution people realized that society structure needs to be changed, okay, and it is possible to change. और उन्हें ये लगने लगा कि हाँ, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे चेंजेस होने की. सो हाउ द सोसाइटी शुड बी? There were different ideas, and these ideas can be divided in different categories, right? Like liberals, radicals, conservatism. Okay, so we must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all times. Okay, so next topic we will discuss about these liberals, radicals and conservatism. So students, I'll tell you which groups were there. Okay, like liberals, they wanted, इस ग्रुप में जो लोग थे, they wanted कि सोसाइटी में हर तरीके के लोग अच्छे से रह सकें. And radicals, this group thought, they wanted कि जो है जल्दी से जल्दी जो चेंजेस है वो जल्दी से जल्दी रातों रात क्या हो जाए, चेंजेस आ जाए. बट व्हाट अबाउट द कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स. ओके, ये दोनों ग्रुप से बिल्कुल इनके फेवर में नहीं थे, जस्ट अपोजिट टू दीज ग्रुप, 2 ग्रुप्स. एंड व्हाट दे वांट? दे वांटेड कि चेंजेस तो आए लेकिन धीरे धीरे आए, in slow process. Okay, so these were the differences in these three groups, right? Now I'll tell you about the liberals. Okay, so students, I'll tell you in detail about the liberals. So it has mentioned here which looked to change society were the liberals. Liberals wanted a nation which tolerated all religions. Means यहाँ पे ये लोग क्या चाहते थे कि हर तरीके के रिलीजन को क्या किया जाए, इक्वल माना जाए. ओके, एंड सोसाइटी में जो है इट वाज डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स. सो यहाँ पे क्या था, लिबरल्स. सो हियर liberals also oppose the uncontrolled power of dynastic rule. ओके, तो ये जो थे ये टोटली अपोज थे डायनेस्टिक रूल्स के. मोनार्की जो सिस्टम था, दे वर अपोज टू इट. एंड राजा रूल कर रहा था तो जनरेशन वाइज उनका बेटा, उसके बाद उनका बेटा, जो नेक्स्ट जनरेशन आती थी, दे ओनली गॉट द पावर ऑफ टू कंट्रोल ऑन द पीपल, राइट? तो ये चाहते थे कि दे वर टोटली अपोज दैट अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल्स. एंड नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट,
they wanted, they argued for representatives elected parliamentary government. और ये किसके अपोज थे? they argued for representative elected parliament government. और ये जो थे ये बिल्कुल आर्ग्यू करते थे रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट थी उनके लिए भी उनके फेवर में नहीं थे. ओके, एंड दे वांटेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट. और ये चाहते थे कि इक्वल राइट्स शुड बी गिवन टू देम. ओके, and equal rights, they demanded for equal rights also. Clear? And however they were not democrats. जबकि क्या था ये? they were not democrats and they did not believe in universal adult franchise. जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट ओनली, देयर वाज नो गवर्नमेंट, एक मोनार्की सिस्टम था जिसके अकॉर्डिंग जो ये सब चल रहा था. सो दे वर ओनली अपोज टू इट, दे वर अपोज टू दिस सिस्टम एंड दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट. तो ये यहाँ पे इनकी ये मानना था कि दे फेल्ट मैन प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट. दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वीमेन. बट यहाँ पे एक और ड्रॉबैक निकल कर क्या है कि दे डोंट वॉन्ट कि विमेन को ये वोटिंग का राइट दिया जाए. दे वॉन्ट पीपल शुड हैव राइट टू वोट, बट ये चाहते थे कि विमेन को वो राइट ना दिया जाए. तो यहाँ पे इनके पास एक बड़ा वीक पॉइंट था कि यहाँ पे विमेन को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी. Okay, now next is about the radicals. Now what about the radicals? Okay, so radicals wanted a nation in which government was based on the majority of country's population. तो यहाँ पे radicals क्या चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है, okay, has based on majority, कि मेजोरिटी के बेसिस पे जो कंट्री के पॉपुलेशन के मेजोरिटी के बेसिस में गवर्नमेंट होनी चाहिए. This is the first point. And the second point is many supported women's suffragette movements. And यहाँ पे now you can see some changes in radicals की ये thought थी कि उनको women को भी क्या दिया जाए, suffragette movement के लिए एक suffragette movement के लिए women को भी support किया. Okay, what is suffragette movement? A movement to give women the right to vote. They wanted कि women should also get right to vote. Okay, now they were not against the existence of private property. अब ये जो थे ये भी चाहते थे कि ये they were not against the existence of private property के against ये नहीं थे, but dislike concentration of property in the hands of few. लेकिन यहाँ पे जो था जो कुछ लोगों के पास, because this was created disparities in society, क्योंकि कुछ लोगों के पास जो थी दैट वाज प्रॉपर्टी जो था कुछ ही लोगों के पास थी, राइट, और हर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं थी. सो दैट्स वाई दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म. सो कंजर्वेटिज्म विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दे वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स. ये दोनों ग्रुप्स के अपोज थे. ओके, एंड दे डोंट वॉन्ट टू चेंज इन सोसाइटी. ये बिल्कुल नहीं चाहते थे क्योंकि एक रूलिंग क्लास थी. दिस वॉज द रूलिंग क्लास. ओके, आई राइट इट अगेन. कंजर्वेटिज्म वॉज द रूलिंग class. Okay, and after the French Revolution they were ready. और कुछ टाइम बाद जब उन्होंने देखा कि एवरीबडी वॉज अगेंस्ट इट, सो दे वर रेडी फॉर दिस डिमांड. एंड उन्होंने क्या चाहा कि दे वांटेड टू बी चेंज बट इन वेरी स्लो प्रोसेस. ये चाहते थे कि चेंजेस, ओके ठीक है चेंजेस आने चाहिए, बट दे थॉट कि ये बहुत धीरे धीरे हो, चेंज धीरे धीरे होनी चाहिए. एंड हियर they accepted that some change was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. right, इससे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो changes है वो क्या होनी चाहिए, through a very
स्लो प्रोसेस। राजा को उनकी पोजीशन से हटने पर जो है उन्हें कोई, उनको लगता था कि कोई उन्हें पूछेगा नहीं, सो दैट्स वाई दे past had to be respected. Okay, so all differing ideas. So here, all differing ideas about social change clash during the social and political turmoil. ओके अब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे जो चेंजेस, जो डिफरेंट कैटेगरीज दे डिमांडेड फॉर सम चेंजेस, तो यहाँ पे डिफरेंट जो है पॉलिटिकल टर्मोइल होने लगा फॉलोड द फ्रेंच रिवोल्यूशन। सो क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही फॉलो करते हुए सारे चेंजेस हो रहे थे। ओके, सो दिस वाज द पार्ट रिलेटेड टू द ऑल थ्री कैटेगरीज विच आर लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिज्म। सो इसमें से एक क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ रेडिकल, एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ कंजर्वेटिज्म, एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल्स। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, राइट। एंड मे बी इन लॉन्ग क्वेश्चन यू विल गेट एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ